हरे कृष्णा। जगतगुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। 10 सितंबर। जनसंख्या में वृद्धि होने से कोई अंतर नहीं पड़ता, किंतु यदि लोग श्रद्धा विहीन हैं तो उन्हें भुखमरी द्वारा दंड दिया ही जाना चाहिए। ये भगवान की व्यवस्था है। स्टॉकहोम, 10 सितंबर 1973। जगतगुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। This is very important verse. The modern scientists, philosophers, they say that after finishing this body, no more exists, finished, everything is finished. This is not new. In only time also there were atheists like Charvak Muni. He also said like that. Bhasmi bhutasya dehasya puno kutah punaragamana bhavet. Now why you are worrying about next life? As soon as this body is burned into ashes, everything is finished. According to Vedic funeral ritualistic ceremony, the body is burned. There are three ends of the body. Either to become stool, or to become ashes, or to become earth. Those who are burying the body, just like the Christian Mohammedan do, the body becomes earth. Everything from the earth it has come out. Dust thou art, dust thou beest. This beautiful body, nice body, will become earth. And those are burning, so that body will become ashes. And those who throw the body to be eaten by jackals and crows, they become stool. This is the end of the body. We are taking so much care of this body. But the ultimate end of this body is either stool, earth, or ashes. So foolish person who are in the bodily concept of life, they are thinking, after all this body will be finished. For so long the body is there, senses are there, let us enjoy. Why so much restriction? No illicit sex, no gambling, no. These are all nonsense. Let us enjoy life. This is atheistic life. Foolish life. They do not know. No, the body is not all. This is the first lesson to understand what is spiritual life, what is spiritual knowledge. With all rascals, they do not know. Therefore, Krishna, first of all, slapped Arjuna. Asatyanam sutastam pragyavadam. You do not know what is the fact and talking like a very learned man. Just try to understand what is true. Natu eva ahangajat. First thing is that nasa. We have no nasa. We never die. That will be explained later on more clearly. We do not die. Nasa. At any time. It's not that sometimes we die and sometimes no. Any time. Jatu. At any time. So, sir, you are Supreme Personality of Godhead. You may not die, but we die. We are ordinary living entities. The Krishna says, Nasam na tang na aham natu eva aham
Jatru-nasa, not Tom. Neither you nor I. We never die. So it may be, I am your friend and you are Krishna, therefore the others will die. No. Neme Janadipa. Neither all these people, all these soldiers, the kings who have assembled here, they will also not. There is no end. They will never die. So, na chaiva na bhavishyama. It is not that we did not exist in the past and we are existing at present, that is everyone knows. So in the future, don't think that we may not exist. Na bhavishyama, it is not that we shall not exist in the future. Na bhavishyama not exist, and you see another not. Two nots makes one yes. Two negative makes one positive. So therefore you have two negative. Na chaiva na bhavishyama. Na bhavishyama means not to exist in the future. That is not. That means we shall exist. Na chaiva na bhavishyama. Sarve, all of us. All of us. You, not that I am because I am God, because you are my friend, God's friend, and all others. No, everyone. Oh. This is knowledge. Oh. In the Kathopanishad there is the verse, Nitya Nityanam. Nitya Nityanam. Nityanam means ever existing. Nitya means ever. Always. So, either Krishna or we, every one of us are ever existing. Because we are part and parcel of Krishna. Therefore, if Krishna is ever existing, so we are also ever existing. A particular gold is gold, qualitatively. The value of gold mine and the gold earring may be different. Gold earring may be, say, $100, but the gold mine, millions of dollars. But both of them are gold. Not that it is iron, therefore less value. No. Small quantity. Krishna is the Supreme Spirit, person. He is all-pervading. Everywhere he is present. He is so expansive. We are also all-pervading, but within this body. That's all. Krishna is all-pervading means throughout the whole creation. Krishna all-pervading. And we are also all-pervading only in this body. You are all-pervading within your body. I know the pains and pleasure of my body. You know the pains and pleasure of your body. So, all-pervading means within this body. If I pinch anywhere, I feel pain. But you will not feel. If I pinch my body, I will feel pain. You will not feel. Therefore, you are not all-pervading, I am not all-pervading. But Krishna is all-pervading. When I feel pain, Krishna knows it. Vedaham samititam. I know everything. That is Krishna. Try to understand distinction between Krishna and us. He is all-pervading. But he is Nitya, ever existing, we are also ever existing. Nitya Nityanam, Chaitana Chaitananam. हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 28।
तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म में भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है वह कभी भी अपने आप को इंद्रिय तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, पिछले श्लोक में क्या बताया कि कर्ता हम नहीं है, कर्ता तो प्रकृति के 3 गुण हैं। हमको ये समझना चाहिए कि भक्तिमय कर्म और जो सकाम कर्म है उनमें भेद क्या है। संसार में हम सबकी जो परिस्थिति है वो हम सबको पता है। हम जेल में बंधे हुए एक कैदी की तरह है। ये भौतिक संसार एक जेल है और उसमें हम फंसे हैं। बड़ी दयनीय परिस्थिति है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर रहे हैं। जैसे एक पिंजरे में किसी पशु को बांध दिया जाए तो पिंजरे में हाथ पैर मारता है, थोड़ा खाना मिलता है, वैसी हमारी गति है। ये शरीर का बंधन है, ये भव बंधन है। इस शरीर में जो आपका शरीर सपोर्ट करेगा उतना ही कर सकते हो। तो फिर क्या करना चाहिए? इससे बाहर निकलने का रास्ता सोचना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा वो चूहा को पकड़ने के लिए जाली रहती है, उसमें जब चूहा फंस जाता है बेचारा बहुत प्रयास करता है, दांत से काटने को प्रयास करता है। दांत बहुत तेज है लेकिन लोहे का जाली है ना, काट नहीं सकता, तो बड़ा दुखी होता है। हम भी वैसे ही दुख में हैं, लेकिन हमारे पास बाहर जाने का रास्ता दिया गया है भगवान द्वारा, और वो है भक्तिमय रास्ता। इस संसार में हम सकाम कर्म में फंस जाते हैं। सकाम कर्म क्या है कि मैं ये कर रहा हूं फिर मुझे भोगना है उसका फल, ये मैं कर रहा हूं उसका फल मुझे भोगना है। तो फिर जब इस फल के चक्कर में हम रहेंगे तो क्या होगा कि इसी पिंजरे में बंधे रहेंगे, इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब ये तो व्यक्ति को खुद सोचना है, और सिर्फ मनुष्य ही ये सोच सकता है, पशु नहीं सोच सकता। पशु कभी नहीं सोचेगा कि मैं यहाँ दुख भुगत रहा हूं। दुख है भी, उसको मिल भी रहा है, लेकिन वो बाहर जाने का उसको पता नहीं रास्ता है कि नहीं है। ये सिर्फ मनुष्यों को फैसिलिटी है। तो अगर मानव जन्म मिलने के बाद हम इस फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा रहे हैं तो कितना बड़ा ये हमारे लिए नुकसान हो रहा है। तो इसलिए भगवान कहते हैं जो विद्वान व्यक्ति है, जो बुद्धिजीवी है, वह भली भांति जानता है इसमें भेद क्या है। भगवान के लिए कर्म करना और अपनी इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए कर्म करना, इन दोनों में बहुत फर्क है। श्री चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, अपने इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। देखिए, जो मैं डायरेक्ट अपने लिए कर रहा हूं कि मैं भोगूंगा वो काम है, और अगर जो मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूं, हाँ कृष्ण को प्रसन्नता मिले, वो प्रेम है। तो कोई बोलेगा लेकिन ये तो गलत है ना, अपने लिए कुछ न करूं सब कृष्ण के लिए करूं तो फिर मुझे कैसे सुख और आनंद मिलेगा। यही तो कैच है। जब आप डायरेक्ट अपने लिए करते हो उसमें सुख नहीं मिलेगा, सिर्फ दुख मिलेगा। जीवन में हमको रिवर्सल्स मिलेंगे, यानी सब जो होगा उलट पलट हो जाएगा। लेकिन जब भगवान के लिए करेंगे तो जैसे ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं आपको आनंद की अनुभूति इमीडिएटली हो जाती है, रुकना नहीं पड़ता। जैसे पेड़ के जड़ में पानी डालते हैं तो पेड़ पूरा फलीभूत हो जाता है। आपको हर टहनी में, हर शाखा में, उपशाखा में, फल में, पत्ते में, फूलों में पानी डालने की जरूरत नहीं है। खाना आपके सामने है, अब उसको सिर्फ आपका इतना काम करना है, मुख में रखना है, उसको चबा के
अंदर भेज देना है पेट में, बस। वहां से अपने आप शक्ति, वो खाने से जो है एनर्जी बनेगा, शक्ति बनेगी और पूरे शरीर में भेज दिया जाएगा। हमको प्यास लगती है, तो प्यास, ऐसा लगता है गला सूख रहा है, पानी पियो। लेकिन सिर्फ गला नहीं सूख रहा है, शरीर में अलग अलग जगह पे जब पानी की कमी होती है तो सिग्नल आता है कि पानी चाहिए। तो सब जगह से ब्रेन सिग्नल इकट्ठा करके फिर आपको सिग्नल देता है पानी पियो। तो यहाँ पे सिग्नल देता है गला सूख रहा है। सिर्फ गला नहीं सूख रहा है, शरीर में अलग अलग अंगों में पानी नहीं पहुंचा है। लेकिन आप क्या करते हैं? बड़ा सरल उपाय है। आप पानी का एक गिलास लेते हो, उसको पी जाते हो, वो पानी पेट में, और पेट के द्वारा वो पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। ऑक्सीजन सांस से लेते हैं, वो फेफड़ों में जाती है, वहां से सब जगह पहुंचाई जाती है। खून जो है वो हार्ट से शुद्ध होता है, पंप होके फिर पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। तो ये केंद्र है। तो वैसे ही ये सृष्टि का केंद्र भगवान कृष्ण है। और अगर हम भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, तो तुरंत, इमीडिएटली, विदाउट एनी डिले, बिना देर किए तुरंत आपको आनंद की अनुभूति होगी, संतुष्टि मिलेगी, सुख मिलेगा। जो आप ढूंढ रहे हैं वो गलत रास्ते से ढूंढ रहे हैं। भगवान की भक्ति का एकमात्र रास्ता है जिससे हमको ये सुख और आनंद मिलेगा। और कोई रास्ता सिर्फ हमारे हाथ में क्या आएगा? विफलता। भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं अर्जुन के द्वारा हम सबको। क्यों? क्योंकि भगवान का दया भाव हमारे ऊपर है, भगवान का प्रेम हमारे ऊपर है। वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मत रहिए इस दुख वाली परिस्थिति में, आप भक्ति करो और आनंद में रहो। इस चीज को भगवान यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हरे कृष्ण।